तो आज in this video we are moving ahead to the another application of biotechnology, that is biotechnological application in medicine. Okay, in medicine science or medical science, how we can use biotechnology and how it is going to help us. Okay, so in biotechnological application in medicine, the first thing that we are discussing today is biotherapeutics. The second thing we will discuss is about gene therapy, and the third will be molecular diagnosis. So these are the three parts of biotechnological application in medicines, among which the first part we are discussing, and we will also discuss an example of the first part, then second, then third. Okay, so biotherapeutics are क्या चीज है? What is biotherapeutics? See, there occurs many kind of deficiency disorders in our body due to the unavailability of certain factors. For example, if we take insulin, which is a very common example and you will relate to it. Suppose we know that in our body insulin is produced, but at certain age the cells which produces insulin, the beta cells, they degenerate or they stop producing insulin. At that time we will be suffering from diabetes mellitus. So how to overcome this problem? Okay, how to overcome this problem? We can overcome this problem by administering insulin from an external source into our body. Okay, so from external source we will have to put insulin in our body. पहले लोग पिग है ना, काउ, ये सब का इंसुलिन बॉडी में डाल लेते थे. किसी किसी का काम करता था, किसी किसी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था, है ना. तो फिर बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने सोचा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा कि इफ वी यूज द इंसुलिन ऑफ काउ एंड पिग, इट वर्क्स एट सर्टेन पीपल बट इट बिकम्स एलर्जिक टू अदर पीपल, है ना. सो व्हाई नॉट वी कल्चर, वी मेक ह्यूमन इंसुलिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन इन द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया. क्यों ना ये किया जाए? ठीक है, तो इस तरीके का जो जो बॉडी में प्रोटीन्स, अगर पकड़ लो ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो कोई बांठा रह जाएगा, इंसुलिन नहीं है तो डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, सम क्लोटिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, फॉल्टी ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, है ना. तो ये सब को कैसे ठीक किया जाए? ये सब प्रोटीन्स बाहर प्रोड्यूस किया जाए ह्यूमन के बॉडी के बाहर, इनसाइड द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया, एंड देन पुट इट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन. This mechanism is called as biotherapeutics. Okay, so biotherapeutics are the important human proteins produced in the body of bacteria mainly and are used for treating deficiency disorders. At present, about 30 recombinant therapeutics, 30 such proteins have been approved globally. ठीक है, तो globally 30 such proteins को ऐसे प्रोड्यूस करके ह्यूमन के बॉडी में डालने का अनुमति, परमिशन हैज बीन गिवन बाय द ग्लोबल बॉडी. ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. इनमें से एक एग्जांपल इंसुलिन को ही लेके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंसुलिन को हम लोग बाहर बना के बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सो सी, प्रोटीन लाइक इरिथ्रोपोएटिन व्हिच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी can be produced outside and put into the body to treat anemia. Anemia is a condition when you have a less number of RBC in your body. Factor number 8 will treat hemophilia. Hemophilia is a condition where you have a faulty blood clotting. Your blood, if you have a cut, the blood will continuous flow from that. Your clot will not form soon. So under that circumstances, if you put this thing in your body, the clot will become faster. FSH will treat what? Infertility. We have discussed about FSH in human reproduction. Insulin, diabetes. Somatotropin, growth disorder, because this is a growth hormone. Growth disorders को ठीक करेगा. Tissue plasminogen activator, heart attack, it breaks the clot. Heart attack जब होता है हार्ट के अंदर, the blood starts to coagulate, clot. This factor will break that clot. Hence this can be used in heart attack. Okay, interferon alpha, it can be, interferon के बारे में हम लोगों ने immunity chapter में पढ़ा है. It can be used in treating blood cancer. We know that interferon attacks the cancerous cell, so it will attack the cancerous cell, such as it will be used in the treatment of blood cancer and other cancers also. Okay, so now this insulin is a protein. This protein can be formed outside the body. How it is formed? Okay, what is the mechanism, procedure of forming this insulin is what we are going to discuss next. Okay, ये नोट बना लो. तो यहाँ पे देखो, इंसुलिन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया है. ठीक है, तो पहला पॉइंट वही लिखा है दैट इंसुलिन यूज्ड टू
used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughter cattle and pigs. ठीक है, एनिमल इंसुलिन इज जनरली सेटिस्फैक्टरी दो कॉज्ड एलर्जी इन सम पेशेंट्स. ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है. दूसरा पॉइंट, इंसुलिन कैन नॉट बी ऑरली एडमिनिस्टर्ड. अच्छा ठीक है, तुमने बाहर इंसुलिन बना लिया बट तुम उसको ऑरली नहीं खा सकते, उसको इंजेक्शन के थ्रू यू विल हैव टू पुट इट इन द ब्लड, बिकॉज इफ यू eat it orally, insulin is basically a protein, so the protein digesting enzyme will break this insulin and it is कुछ मतलब हर इंसुलिन का जितना भी अमाइनो एसिड है सबको अलग अलग कर देगा. स्टोमक में देयर इज पेप्सिन, पेनक्रियास में देयर आर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ब्ला ब्ला ब्ला, अदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो सब तोड़ देगा. तो इसलिए इंसुलिन अगर बाहर प्रोड्यूस करके यू नीड टू पुट इट इन योर बॉडी, यू विल हैव टू डू इट वाया इंजेक्शन, यू विल हैव टू पुट इट डायरेक्टली इन योर ब्लड. ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया है कि इंसुलिन, ये दोनों पॉइंट. नाउ द मेन पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज, हमारा बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग इंसुलिन. ठीक है, सो ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में देयर इज ए जीन प्रेजेंट, विच जीन प्रोड्यूसेस इंसुलिन. लेकिन जब इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ मैच्योर फॉर्म, इन अ वर्किंग फॉर्म. इंसुलिन को पहले जब प्रोड्यूस किया जाता है, उसको एक इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रो इंसुलिन. ओके, जस्ट सिमिलरली जैसे कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो क्या एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? नहीं. फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजेन व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विद HCl, इट बिकम्स एक्टिव, इट बिकम्स पेप्सिन. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा बॉडी का कोई भी सेल या कोई भी जब हार्मोन या जब पकड़ लो हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है या एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम एंड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन अ इनएक्टिव फॉर्म, प्रो फॉर्म. उसको फिर कन्वर्ट करके एक्टिव फॉर्म में या मैच्योर फॉर्म में लाया जाता है. तो जब भी ये क्रोमोसोम नंबर 11 इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं. तो क्रोमोसोम नंबर 11 जब भी इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा, वो एक ऐसा इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा जो होगा एक प्रो इंसुलिन. सो प्रो इंसुलिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ए पेप्टाइड, एक चेन देखो जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया. इस ए पेप्टाइड में देयर आर 21 अमाइनो एसिड. बी पेप्टाइड, उसमें प्रेजेंट है 30 अमाइनो एसिड. एंड एक है ब्लू में जो बीच में है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सी पेप्टाइड, जिसमें नियर अबाउट 35 अमाइनो एसिड्स आर देयर. बट this C peptide is an unnecessary portion which is present attached to this. So what is the conversion? एक प्रो हार्मोन एक एक्टिव हार्मोन में जब कन्वर्ट होगा, या प्रो इंसुलिन जब एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट होगा, तो चेंजेस क्या होगा? चेंजेस बस ये होगा कि C को रिमूव कर दिया जाएगा. वो बॉडी के पास अपना सेटअप है, अपना मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म से जब क्रोमोसोम नंबर 11 प्रो इंसुलिन बनाएगा, ठीक है, बॉडी में देयर आर सम फैक्टर्स प्रेजेंट व्हिच इज गोइंग टू एलिमिनेट द सी पेप्टाइड, okay, and it is going to keep the A and B peptide together. When only A and B peptide are together, then it is considered as a mature insulin. See, this is mature insulin, this is A peptide, this is B peptide. A black में, B रेड में, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है. SS, दो SS माने देयर आर डाइसल्फाइड बॉन्ड व्हिच कनेक्ट्स द A चेन विद द B चेन, एंड C चेन जो है उसको फ्री कर देंगे, माने उसको रिमूव कर देंगे. देखो, फ्री C पेप्टाइड रिमूव. ठीक है, अब अगर आप देखो, मैंने क्यों बोला इसको ध्यान से समझने के लिए, इसलिए बोला क्योंकि आज अगर हम लोग को इस इंसुलिन को बाहर प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग इस क्रोमोसोम नंबर 11 का वो डीएनए काट के निकाल के किसी बैक्टीरिया के बॉडी में डाल देंगे और बैक्टीरिया के बॉडी में वो इंसुलिन बन जाएगा. ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने इस क्रोमोसोम नंबर 11 का डीएनए को काट के अगर बैक्टीरिया के बॉडी में डालेंगे, तो वो डीएनए बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंसुलिन जो प्रोड्यूस करेगा, वो कैसा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा? ऐसा करेगा. एंड बैक्टीरिया के बॉडी में वो मैकेनिज्म नहीं है जो इसको ऐसा बना के बाहर छोड़ेगा. हम लोग को तो ये चाहिए ना, हम लोग को तो ये नहीं चाहिए. इसको अगर हम लोग बॉडी में डालेंगे, इट वोंट वर्क. समझ में आया ना? इसको अगर हम लोगों ने बाहर बना के अगर हम लोगों ने बॉडी में इसको डाला, एक इनएक्टिव इंसुलिन को डाला, तो उसका हमारे बॉडी में क्या काम? हमको तो एक्टिव इंसुलिन चाहिए. ठीक है ना? तो क्रोमोसोम नंबर 11 का वो जो डीएनए है जो इसको प्रोड्यूस करता है, उस डीएनए को मान लिया हम लोगों ने काट लिया, और काट के उस डीएनए को हम लोगों ने बैक्टीरिया के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया. तो बैक्टीरिया के बॉडी में अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे,
तो ये डीएनए बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये डीएनए बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ऐसा इंसुलिन बनाएगा एंड देन बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं है जो सी पेप्टाइड को अलग कर देगा, ये एक लोचा हो जाएगा। तो सी पेप्टाइड को अगर अलग नहीं करेगा तो इस तरीके का इंसुलिन का हमारा क्या काम। तो ये ऑप्शन आउट ऑफ द बॉक्स चला गया कि हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 11 को काट के निकाल ले और निकाल के बैक्टीरिया के बॉडी में डाल दे एंड इंसुलिन प्रोड्यूस कर ले, क्योंकि आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड करना मुश्किल है। ये बॉडी के पास अपना मैकेनिज्म है जो सी पेप्टाइड को बीच से काट के निकाल देता है, ए एंड बी को अपने साथ जोड़े रखता है। आर्टिफिशियली बाहर शायद कर भी सकते हैं, लेकिन वो करने में हम लोग को बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द कॉस्टिंग, इट इज about keeping the things on a cheaper side so that people can afford it, especially the medicine things, है ना। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो इसलिए ये आइडिया तो गया कि डीएनए को काट के निकाल ले ह्यूमन के बॉडी से एंड बैक्टीरिया के बॉडी में डाल दे, ये आइडिया चला गया। अब क्या आइडिया आया, अब हम लोगों ने इस मैकेनिज्म को समझा और समझ के हम लोग को पता चला कि हम लोग को मैच्योर इंसुलिन से मदद है, मतलब जरूरत है, मैच्योर इंसुलिन हम लोग को चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो देयर वेर साइंटिस्ट जिन्होंने 2 डीएनए डिजाइन किया। ध्यान से मेरा बात सुनो, अब इसके बाद मैं डायरेक्ट नोट दे दूंगा। देयर वेर साइंटिस्ट हु डिजाइन 2 डीएनए, दे डिजाइन 2 डीएनए इन सच अ वे दैट 1 डीएनए अगर हम बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, इस डीएनए को लैब में प्रिपेयर किया गया, ठीक है, और लैब में प्रिपेयर किया गया एंड इस डीएनए को ऐसा प्रिपेयर किया गया कि इसको अगर हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो ये डीएनए कुछ प्रोटीन्स बनाएगा और वो प्रोटीन होगा हमारा ए चेन या ए पेप्टाइड। ये ए पेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड है, 21 अमीनो एसिड का सीक्वेंस को हम लोगों ने पता लगा लिया एंड एक ऐसा डीएनए हम लोगों ने लैब में डिजाइन किया कि ये डीएनए को अगर मैं बैक्टीरिया के अंदर डालूं तो ये डीएनए इस ए पेप्टाइड या ए चेन में जिस तरीके का सीरियली 21 अमीनो एसिड जिस तरीके से प्रेजेंट है, उस तरीके का ये डीएनए हम लोग को उसी तरीके का एक एग्जैक्ट चेन बना के देगा। एक और डीएनए हम लोगों ने डिस्कस किया, मान लेते हैं ये है ऐसे डीएनए अल्फा और ये है डीएनए बीटा, और इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, लैब में डिजाइन किया। तो डीएनए अल्फा हैज द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए चेन in an exact amino acid sequence, whereas DNA beta has the ability of forming B chain in exact amino acid sequence of 30 amino acid। तो हम लोगों ने ये दोनों डीएनए बाहर डिजाइन किया और करके हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया को जब हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, किधर, बायोरिएक्टर में, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ठीक से बायोरिएक्टर से खाना खाएगा एंड बायोरिएक्टर में बना के छोड़ेगा क्या, ए चेन एंड बी चेन। अरे अचानक इतना पसीना क्यों आ रहा है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर में ये बैक्टीरिया बना के छोड़ेगा ए चेन एंड बी चेन, ठीक है ना। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा इन द बायोरिएक्टर उसमें हम लोग को फ्री ए चेन एंड फ्री बी चेन मिलेगा। दोनों को आइसोलेट करेंगे बायोरिएक्टर से और आइसोलेट करके ए एंड बी चेन के बीच में आर्टिफिशियली हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्रिएशन करेंगे इन द लैब एंड देन आवर मैच्योर इंसुलिन इज रेडी टू बी मार्केटेड टू बी गिवन टू दोस पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो आइडिया समझ में आया कि नहीं, कि अगर हम लोग डायरेक्ट क्रोमोसोम काट के निकालेंगे तो इस तरीके का प्रो हार्मोन बना देगा, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर पॉसिबल है जब प्रो हार्मोन को एक मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज पॉसिबल इनसाइड आवर बॉडी, बट सच फैक्टर्स व्हिच डज दिस कन्वर्शन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया। So if you put this chromosome number 11 का gene inside the bacteria, it will produce a pro hormone which will be not beneficiary for us. Hence साइंटिस्ट ने क्या सोचा, ए पेप्टाइड में क्या क्या अमीनो एसिड है जान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक डीएनए बनाते हैं, बाहर लैब में एक डीएनए बनाते हैं। ये ऐसा डीएनए है जिसको अगर हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर डाला तो ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाके सिर्फ ए पेप्टाइड या ए चेन का फॉर्मेशन करेगा इन एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ 21 अमीनो एसिड। बाहर लेबोरेटरी में एक और डीएनए बनाता है जिसका नाम होगा डीएनए बीटा, वो बनाएगा एक ऐसा 30 अमीनो एसिड का चेन व्हिच विल बी एग्जैक्ट टू द बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, दोनों को बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, बैक्टीरिया सेपरेटली ए चेन बनाएगा, सेपरेटली बी चेन बनाएगा और बना के इन प्रोटीन्स को बायोरिएक्टर का जो फ्लूइड है उसमें डालेगा। डाउन स्ट्रीमिंग करके हम लोग प्रोटीन्स को आइसोलेट कर लेंगे, वो प्रोटीन्स में
ए चेन अलग, बी चेन अलग, फिर ए एंड बी चेन को हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से लेबोरेटरी में ज्वाइन कर देंगे, देके हमारा इंसुलिन रेडी है, मैच्योर इंसुलिन इज रेडी। दिस इज द फिनोमिनन, दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस थिंग। ओके, सो ये आई होप समझ में आया है। अब इसका नोट में देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। जो समझाया अभी डायग्राम में वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। The main challenge for the production of insulin using recombinant DNA was getting insulin assembled into a mature form। जो मैंने बोला डायरेक्ट डीएनए काट के नहीं कर सकते, मैच्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना जरूरी था। सिंस हेंस इन 1983 एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था, कंपनी का नाम है, इंसान का नाम नहीं, इली लिली, इट वाज द नेम ऑफ अ कंपनी, prepared 2 DNA sequences artificially corresponding to A and B chains, जिनमें एबिलिटी था A पेप्टाइड एंड B पेप्टाइड को बनाने का। इंट्रोड्यूस देम इन PBr322, डीएनए बनाया लैब में, फिर PBr322 जो वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है उस वेक्टर में इन डीएनए को अलग अलग जगह डाला गया। देन ट्रांसफर टू ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, ठीक है। As well as sequence of A and B chains were also linked with LEG-Z gene for acting as selectable marker. Now selectable marking we have discussed. If you put a DNA then you also have to know about the selectable marking thing, है ना। इसलिए A and B प्रोड्यूसिंग डीएनए के साथ एक LEG-Z जीन भी लगा दिया, ठीक है। तो जिन में A and B फॉरेन जीन ई कोलाई में ए एंड बी चेन प्रोड्यूसिंग डीएनए प्रेजेंट है, उनमें LEG-Z भी है ना। तो LEG-Z होने के वजह से वो LEG-Z क्या करेगा, ब्लू कलरेशन देगा। तो जो ब्लू कलरेशन देगा वही ई कोलाई के अंदर हमारा ए एंड बी चेन्स प्रोड्यूसिंग डीएनए है, तो हम लोग सिलेक्टेबल मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर बैच फर्मेंटेशन फिर हम लोग ई कोलाई को ग्रो होने देंगे। डाउन स्ट्रीमिंग, ई कोलाई उसमें प्रोडक्ट छोड़ेगा, उसको डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे हम लोग, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। चेन्स ए एंड बी वेर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड, डाउन स्ट्रीमिंग से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। तो यही वो मैकेनिज्म है जो इसके पहले डायग्राम में जो समझाया वो यहाँ पे हम लोग को एक नोट के जैसा दे दिया। जब ये वीडियो शेयर करूँगा तो मुझे याद करा के देना, ये जो इंसुलिन फॉर्मेशन का एक डायग्राम है वो डायग्राम भी मैं तुम लोग को भेज दूंगा, लेकिन मुझको याद करा के देना कि वो डायग्राम भेजना है बोल के, ठीक है। 2 features that facilitate the production of insulin using this technique is it is not modified after translation। ये जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली डीएनए बनाया, इली लिली ने जो आर्टिफिशियली डीएनए बना के उससे जो ए एंड बी चेन प्रोड्यूस किया, वो ए एंड बी चेन का एमाइनो एसिड सीक्वेंस डिड नॉट ऑल्टर। The amino acid sequence was in a linear sequence, just exactly like our chromosome number 11 produces. Insulin being a relatively small protein was easy to produce. Okay, अगर ये बहुत लंबा चेन का अगर होता तो इसको फॉर्म करने में हमारा फट जाता, ठीक है ना। लेकिन बिकॉज इसका एमाइनो एसिड चेन जो है उसमें एमाइनो एसिड्स कम है रिलेटिवली, एक में 21 एक में 30। तो क्वेश्चन ऐसा बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द इंसुलिन, 51 इन टोटल, ठीक है ना, क्योंकि वो सी का कंसीडर नहीं करना है, ए एंड बी कंसीडर करोगे। तो बिकॉज दिस चेन हैज रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, हेंस इट इज इजी टू प्रोड्यूस बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक। ओके, सो आई होप ये समझ में आया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। इसका नोट बना लो, इसका नोट बना लो, एंड वो जो डायग्राम में बोला हूँ भेजूंगा उसके लिए अलग सा जगह रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जीन थेरापी, द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ओके, सो जीन थेरापी में क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्सन के बॉडी में नॉन फंक्शनल जीन है बट दैट इज इन अ नॉन फंक्शनल स्टेट, और द जीन has stopped synthesizing the necessary protein which it has to do. So under that circumstances, how you can cure that thing? You can cure that thing by doing gene therapy. That means you will have to do gene addition. You will have to put a correct gene, correct functional gene, correct working gene inside the body of that person, which will take over the work of the non-functional gene. ठीक है, देखो, the aim of this method is to cure an inherited disease. Okay, if there is some kind of inherited disease, suppose पेरेंट्स में कलर ब्लाइंडनेस है, बच्चा में भी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, क्योंकि उसमें वो जीन काम ही नहीं कर रहा है या वो जीन एब्सेंट है बिकॉज उसके पेरेंट्स में नहीं था।
ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द पेशेंट विथ अ करेक्ट कॉपी ऑफ द डिफेक्टिव जीन, ठीक है। तो जो जीन डिफेक्टिव है उसका करेक्ट कॉपी उसके अंदर में हम लोग जीन एडिशन करेंगे। जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल और टिश्यूज टू ट्रीट अ हेरिडिटरी डिजीज स्पेशली इन अ चाइल्ड एंड एम्ब्रायो। चाइल्ड एंड एम्ब्रायो में एमनियोसेंटेसिस ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, उसका जेनेटिक कोई डिसऑर्डर होने से पता लगा लेते हैं और पता लगा के उसके उस डिफेक्टिव जीन को हम लोग करेक्ट जीन से रिप्लेस कर देंगे या करेक्ट जीन डाल देंगे जो डिफेक्टिव जीन को टेक ओवर कर लेगा। जो काम डिफेक्टिव जीन को करना चाहिए था बट बीइंग डिफेक्टिव वो काम वो नहीं कर रहा है, करेक्ट जीन उसमें डाल के हम लोग वो काम करवाएंगे। Example, the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. This is an enzyme which is required for the formation of T lymphocytes, and without T lymphocytes our immune system won't work. T lymphocyte is the mediator for the formation of antibodies. Mechanism of immunity में हम लोगों ने पढ़ा है। Killer T cell is responsible for giving that boost in killing the antigens, है ना, वो भी नहीं मिलेगा। Suppressor, memory कहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, दिस एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर प्रोन टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ऑब्वियसली बैक्टीरिया वायरस ज्यादा इन्फेक्ट करेगा क्योंकि बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स नहीं है। कलेक्टिवली द कंडीशन इज कॉल्ड सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिसऑर्डर और SCID। इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम को हम लोग SCID बुलाते हैं, जो होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एडिनोसिन डीएमिनेज। तो जिस जीन को इस एंजाइम को फॉर्म करना था वो जीन इस एंजाइम को फॉर्म नहीं कर रहा था इस बच्ची के बॉडी में, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक करेक्ट जीन इस बच्ची के बॉडी में डाल दिया जो इस बच्चे के बॉडी में जाके एडिनोसिन डीएमिनेज का फॉर्मेशन करना चालू कर दिया और थ्रू आउट द लाइफ वो फॉर्म करते रहा। जीन थेरापी के अलावा इस प्रॉब्लम को ठीक करने का और भी दो सोल्यूशन था बट दे वर टेम्पोररी सोल्यूशन, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन अनटिल और अनलेस दिस जीन थेरापी सोल्यूशन वाज डिस्कवर्ड। क्या था जीन थेरापी आने से पहले का सोल्यूशन? इट कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो सेल्स। तो बोन मैरो सेल का जीन में डिफेक्ट हुआ इसलिए वो सेल ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, किसी और से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, डोनर खोजना पड़ेगा, रिसिपिएंट सब कुछ मैच करना पड़ेगा, प्रॉब्लमेटिक। वाया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी शॉर्ट फॉर्म में ERT, इसमें क्या करते हैं वही जो इंसुलिन में पड़ा है, बाहर आर्टिफिशियली हम लोग एंजाइम को सिंथेसाइज करके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे ब्लड में, वेयर द डिफिशिएंट एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड एंड इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, बट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ये दोनों ही कंप्लीटली क्यूरेटिव मेजर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि जो फीमेल है उस मतलब जो लड़की है, सपोज ये जो लड़की है, इस लड़की का पूरा बोन मेरो को हम लोगों ने निकाल लिया एंड किसी हेल्दी इंसान का बोन मेरो उसमें डाल दिया। कोई एक हेल्दी इंसान अपना कंप्लीट बोन मेरो क्यों देगा? अपना कंप्लीट बोन मेरो का थोड़ा हिस्सा दे सकता है, कंप्लीट कैसे दे देगा? तो थोड़ा देने से थोड़ा एडिनोसाइन डीएमाइनेज फॉर्म होगा, थोड़ा एडिनोसाइन डीएमाइनेज थोड़ा टी लिम्फोसाइट को फॉर्म करेगा, थोड़ा टी लिम्फोसाइट विल नॉट हेल्प द गर्ल फ्रॉम फाइटिंग अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस। सो कंप्लीट सोल्यूशन दोनों ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंप्लीट सोल्यूशन इन दोनों से ऊपर है जीन थेरापी, ठीक है। अभी कुछ और नोट दे रहा हूं, इसका नोट बना लो। तो यहाँ पे देखो जीन थेरापी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो जीन थेरापी हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरापी, lymphocytes from the blood of a patient are grown in a culture. Lymphocytes will be taken from that patient and it will be grown in a culture outside the body. The functional adenosine deaminase chromosomal DNA using a retroviral vector retrovirus, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, is then introduced into the lymphocyte and इस वेक्टर के मदद से एक फंक्शनल वर्किंग क्रोमोसोमल डीएनए को लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल देंगे, which are subsequently returned to the patient, डाल के इन लिम्फोसाइट्स को पेशेंट के बॉडी के अंदर वापस भेज देंगे। However, as these cells are not immortal, है ना, तो ये सेल्स कभी ना कभी मरेगा, लेकिन जब तक ये सेल्स जिंदा रहेगा तब तक ये सेल के अंदर से एडिनोसाइन डीएमाइनेज प्रोड्यूस होते रहेगा एंड दैट विल बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes. But hence these cells are not immortal,
the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. ठीक है, at a time interval देते रहना पड़ेगा. तो ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन परमानेंट इसको हम लोग बना सकते हैं. कैसे? However, if the gene isolated from the marrow cells, bone marrow cells, producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage. ठीक है, अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में अगर हम लोग बोन मेरो के सेल्स में, अगर बोन मेरो का कुछ सेल्स हम लोग निकाल लें, है ना, एंड बोन मेरो के सेल्स में अगर हम लोग जीन एडिशन करके उस बोन मेरो सेल को वापस ट्रांसफर कर दें इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एम्ब्रायो, तब इट कैन बी अ परमानेंट क्योर.